क्या मैं अपने आप को मिल सकती हूँ? रोज अपने शरीर से तो मिलती हूँ, आपसे नहीं। और क्या मैं जागरूक होकर के शरीर छोड़ सकती हूँ? इसके लिए क्या करना होता है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ही मुझ में हो और सब में हो, पर आपको देख नहीं पाती। और ये भी विचार आता है कि जब शरीर हम छोड़ेंगे तो मौत कैसी होगी, दर्दनाक होगी। तो ये सोच के डरती हूँ कि मेरे शरीर की मौत कैसी होगी। पहली बात, पूछा कि क्या मैं अपने आप को मिल सकती हूँ? शरीर से तो रोज मिलती हूँ। ये शरीर में है, ये एक भ्रम है। भ्रम मतलब मिसकंसेप्शन। भ्रम मतलब इल्यूशन। We consider ourselves as body. This is a misconception. It's an illusion. It's not true. आप शरीर नहीं हैं, ये सच है। पर जब सच सच न लगे और भ्रम सच लगे, भ्रम समझते हो ना, इल्यूजन, जब वो सच लगने लग जाए, इसी को अज्ञान कहते। अज्ञान, ज्ञान मतलब knowledge. अज्ञान, no knowledge. So when you have no knowledge about the self, then you see the body as I. And that is what your status is at the moment. But every night in sleep, when you see a dream, you see your body there. And you consider that body also as I. And then all family and world and everything is there seen, which you think is real, and you are living that. Dream as a reality. But upon waking, you never cry, oh, where did my body go? Because it was never you, because it was not a reality, hence on waking up, you never ever give a second thought about that body which you saw in the dream. Right? Just apply the same logic now to this waking state. Now also you think this body is you, and all the family around it is you, and all the world around is real. As it was in the dream, so is now in this waking state. From that sleep, when you are woken up, the dream is gone. Right? So is it a painful thing when it happens? Is it a very painful thing when this happens? No. Actually, you were enjoying the dream. And sometimes when you are up, you wonder, oh, why did it end? How can I keep it on? Still, but once the dream is gone, it is gone. Similarly, this life and this body seems to be real, seems to be true. But you were saying same about that dream body also. You were feeling the exactly same thing even in the dream also, and which was not true. And on ending of that particular dream, you never cry.
So now what you are seeing as real is actually a dream only. And when this dream will end, it will be exactly like what happens when you wake up in the morning. You never even give a second thought about what you saw in your dream or about that body which you saw. जितनी जोर से ये लगता है कि ये शरीर मैं हूं, सच ये है कि ये शरीर तुम हो ही नहीं। अच्छा, आप हर रात सपने में एक नया शरीर देखते हो, कभी कहीं देखते हो खुद को, कभी कहीं देखते हो, कभी बचपन का शरीर देखते हो, कभी अपने आप को मरा हुआ देखते हो, कभी अपने किसी संबंधी को मरा हुआ देखते हो। और जब नींद खुलती है तो फिर अच्छा सपना था, छुट्टी, बस बात खत्म। आप रोते तो नहीं हैं? हाँ, कभी कभी नाइटमेयर्स, when you take that dream as too true and you wake up, then you are crying and then you get shocked and then you run to your loved ones. Oh, I had such a bad dream. And then the other person says, well, it was just a dream, forget it. Why cry? ये शरीर मैं हूं ये सच नहीं है, और इस जैसे लाखों शरीर तुम्हारे हुए और चले गए, तुम किसी एक उस शरीर को याद आज नहीं करते हो, तो तुम इस शरीर को जिसमें आज हो, इसमें भी तुम बंधने वाले नहीं हो, इसमें भी तुम फंसने वाले नहीं। तुम्हें जितना मर्जी लगता रहे कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, पर जहाँ शरीर के मरने का समय आया, इस शरीर को आप ऐसे छोड़ दोगे जैसे तुम मुरझाए हुए फूल को फेंक दो बाहर। तो कहते भी अब अच्छा नहीं लग रहा, निकालो इसको बाहर, अब नया फूल लाएंगे। Durga, do you cry when you throw old flowers from your home? No. Because you will get a new one and decorate your room again. ऐसे ही एक शरीर चला जाता है तो दूसरा शरीर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, और वो बहुत कुछ एक जिंदगी में मिलता नहीं है। फिर उन सभी इच्छाओं को पूरा होना देखना पड़ेगा। Then you don't have any choice. आप कभी सोचते नहीं हैं कुछ इच्छा करने से पहले, कुछ भी सोच लेते, पर आप ये भूल जाते हैं तुम जो जो सोच रहे हो वो सब पूरा होगा। मालूम क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा के स्वरूप हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। जैसी शक्ति परमात्मा में है वैसी तुम में भी है। तो तुम्हारी की गई हर इच्छा जरूर पूरी होती, पर चूंकि इच्छाओं का एक बैकलॉग बहुत सा पड़ा हुआ है, इसलिए जो आज तुम इच्छा करते हो आज ही आज पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इच्छाओं की ना एक बहुत बड़ी डिपॉजिट है जो तुम्हारी सबकॉन्शियस में, तुम्हारे अवचेतन में पड़ी हुई है। तो जब उनका नंबर लग जाएगा तब अब वालों का नंबर लगेगा।
और फिर इन इच्छाओं के कारण जो तुम कर्म कर जाते हो, उन कर्मों से, पाप या पुण्य कर्म जो तुम करते हो, उन कर्मों की वजह से जो फल मिलने हैं, उन फल को भोगने के लिए भी शरीर तो चाहिए, इसलिए भी जन्म होगा। Are you getting? Two reasons why the next birth will happen. One, you have huge unfulfilled desires. Two, you have huge number of karmas which have to fructify in your life. So this is the reason that 70, 80 or 100 years of life is not enough to fulfill all the desires of the mind. हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हम पता नहीं, मन तो इतनी उड़ान भरता है, मन इतनी उड़ानें भरता है, इच्छाओं के बीज समय की जमीन में डालता जाता है। Like when you sow a seed, it will become a plant, right? And the plant will become a tree. And if a tree is, say, of a very bitter fruit, then this karma seed law is that all the fruits which will come, you have to eat. You cannot share it with anybody. Good, bad, whatever is coming today in your life is result of your own past karma. It's a very horrific thing to accept. और फिर लोग सवाल करते हैं, हम क्या इतने बुरे हैं? क्या हम इतने बुरे थे कि हमें इतना बुरा देखना पड़ता है? अब हमारा ईगो हमको ये मानने नहीं देता कि हम कुछ बुरा कर भी सकते हैं। पर आप जरा अपने आसपास नजर दौड़ा करके देखो, बुराई की कोई कमी नहीं है। और बुराई एक छूत की बीमारी की तरह, like an infectious disease, the negativity comes in your mind. और जब हम शरीर से बड़ी ज्यादा लगाव और मोहब्बत करते हैं तो आदमी नहीं, फिर तो जानवर हो जाता है। जैसे आज ही एक देश के बारे में आया कि उस देश में लॉ पास किया है कि अपनी अडॉप्टेड लड़की से आदमी जब चाहे शादी कर सकता है। Law has been passed in one of the Arabian country. Just now, it was news. You can marry your adopted daughters. Doesn't matter आप किस धर्म को मानते हो, कर्म का कानून तो वही लगेगा। जैसे ग्रेविटी सब पे लागू होती है, तुम कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो या भगवान के मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, धरती की ग्रेविटी का असर सब पे होगा। बारिश पड़ेगी तो गीले सब होंगे। अब कर्म का सिद्धांत ये कहता है, अगर तुम किसी को पीड़ा, दुख दोगे तो वो दुख वापस तुम्हारे पास जरूर आएंगे और सूद समेत, with interest it will come back to you. And when the anger is in the mind, then all the logic and reasoning just goes away. People just do it. बहुत सारे जुर्म, बहुत सारे क्राइम किसी गुस्से, किसी जुनून में आदमी कर जाता है। बाद में बहुत लोग हैं जो पछताते हैं,
पर ये भी सच है कि जेलों में बंद या जेलों के बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने किसी किए गए बुरे कर्म का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो they are very proud of how heinous crimes they have done and they never got caught. Even in jail, there is a hierarchy in the convicts. The one who have done the worst are like kingpins inside. Those who have lesser crimes, meaning somebody is there for life, will be like a boss there. Somebody who has come for like 2-year imprisonment, this king says, don't even enter this area. You stay there because in 2 years you will be out. We have nothing to do with you. Proud of their crimes. झूठ बोल के, बेईमानी करके, मक्कारी करके, सांठ-गांठ करके, with all the conspiracies, when people do all these bad things, do they ever worry about what results will come to their, what they will have to face one day? No, they don't. गुस्से में आकर के लोग कितना बुरा कर जाते हैं एक दूसरे का, बहन भाई का, भाई भाई का, माँ बाप बच्चे का, बच्चे माँ बाप का। जब गुस्सा आया या जब लालच आया, आप पढ़ते हो, अखबारों में आता है, माँ का, औरत का किसी से संबंध हो जाता है, 3 बच्चे हैं, पति है, वो अपने यार को मिल नहीं सकती, उसने सबको जहर देकर मार दिया, सबको।